Good evening. So we'll start with problem solving. Today, I would also like to complete the theory of maxima minima through AMGM, arithmetic mean, geometric mean. It's a very common concept used in all exams. So right now there's a question on the screen for you to solve. If k is between 0 and 1, the roots of the given equation, roots of this large equation are both 0, both real and both negative, imaginary, real and both positive. Go on, solve. You have to find nature of roots: real, positive, negative, imaginary, or zero. It's a slight typing issue. This is the current equation. This is the correct equation. 1 minus k into x square plus 4x plus k is equal to 0. This is the equation. You have to predict whether the roots are both 0, they are both negative, real and negative, real and positive, or imaginary. So what we calculate is delta. Delta tells us at least the nature of the roots. So if I look at this is the middle term b square 16 minus 4 into first term into last term. Now 4 is common. We have 4 minus 1 minus k into k. Now because k is a decimal number, k is between 0 and 1. The product of these two will also be between 0 and 1. एक नंबर लिख के चेक कर लो. If I take k is equal to half, if I put it here, 1 minus half into half is equal to 1 by 4. ये वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं होगी. So delta is positive. Delta is positive. This option is gone. This option is gone. The answer is either B or D. I want you to learn and observe these things. Whatever value you put for k, the first term is positive x square, then 4x, then another positive number will be here equal to 0. Do you observe, if I put a value of x which is positive, it is like addition of three positive numbers. Can addition of three positive numbers be 0? No. So both roots cannot be positive. The only possible option is B, Bombay. Both roots are real and negative. First we proved that roots must be real. How did we achieve that? वो हमने कैसे किया? With the value of delta. What is delta? B square minus 4AC is delta. By checking that value, we observe delta is more than 0. When delta is more than 0, roots are real. Looking at the entire equation is positive. So root cannot be positive. क्योंकि positive अगर number put करोगे तो कभी 0 होगा ही नहीं. Let us try more questions. ये लो, take 2 minutes. थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है. There is an inequality for alpha, beta. Then you have to predict under what condition will fx be more than 0. Take 2 minutes, give it a try.
क्या कह रहे हैं? लेट अस अंडरस्टैंड एंड रीड एवरीथिंग. गिवन द इक्वेशन fx, ये क्या चीज का इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है. a इज लेस देन 0, तो पहला वैल्यू नेगेटिव है, तो अंडरस्टैंड द ग्राफ इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड्स. ऐसा ग्राफ होगा व्हेन a इज नेगेटिव. इट हैज इंटीग्रल रूट्स, रूट्स इंटीजर्स होंगे, रूट्स कैन नॉट डेसिमल और इमेजिनरी और सर्ड, इंटीजर होंगे. वेयर अल्फा इज बिटवीन -4 to 2 and beta is between -3 to 4. How many distinct pairs of alpha and beta v get fx more than 0? तो ये सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेट सा सवाल है. लेट मी ड्रॉ 3 कंडीशंस फॉर यू. ये x एक्सिस है. आई एम ड्रॉइंग 3 सेपरेट कंडीशंस. In one condition, the graph never touches the axis. In one condition, it touches and leaves. And in one condition it crosses the x-axis. तो देखो यहाँ पे what are we being told, क्या बोला जा रहा है हमसे? That fx is more than 0. If fx is more than 0, तो ये अकेला सिनेरियो है जहां पर ग्राफ पॉजिटिव हुआ है. तो आपसे कह रहे ऐसा ग्राफ बनना चाहिए. ये ग्राफ कब बनता? जब रूट इमेजिनरी होते. ये ग्राफ कब बनता? व्हेन रूट्स आर इक्वल. हमें दो अलग अलग रूट चाहिए. अभी अल्फा कुड बी एनीथिंग, बीटा कुड बी एनीथिंग. अल्फा के पास कितने अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल है? ध्यान से देखो. फ्रॉम हियर टू हियर, 2 -4 +1. अल्फा के पास 7 वैल्यूज पॉसिबल है. बीटा के पास कितने वैल्यूज पॉसिबल है? 4 -3 +1. ये हम डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर लेक्चर्स में. हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर? अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू +1. तो इसके पास 8 वैल्यूज है. तो अल्फा एंड बीटा के लिए हमारे पास होने चाहिए 56 वैल्यूज. अब बस एक कंडीशन अवॉइड करनी है आपको. अगर दोनों रूट बराबर हो जाते हैं तो ग्राफ 0 हो सकता है. द ग्राफ कैन बी 0, इट विल नेवर बी पॉजिटिव. हमें पॉजिटिव चाहिए. देखो अल्फा और बीटा कौन कौन सी वैल्यू बराबर हो सकती है. अल्फा अगर -3 हो गया और बीटा -3 हो गया, ये नहीं होने देना है. ये -2 हो गया, -1, 0, 1 और 2. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 पॉइंट्स पे ऑन दीज 6 पॉइंट्स अल्फा बीटा कैन बी इक्वल. हमें ये नहीं होने देना है. दिस वी कैन नॉट अलाउ टू हैपन, क्योंकि अल्फा बीटा अगर सेम हो गए तो वी कैन नॉट हैव पॉजिटिव इक्वेशन. तो ये 6 केसेस माइनस कर देने आपको. सो 50 डिफरेंट इक्वेशंस आर पॉसिबल. 50 अलग अलग इक्वेशंस पॉसिबल हैं. 50 अलग अलग इक्वेशंस पॉसिबल हैं in which roots are integers and the graph will be positive at some point of time. कभी ना कभी पॉजिटिव होगा. बस आपको अल्फा और बीटा दो अलग अलग पॉइंट चाहिए. अब अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा, ऐसा कहीं नहीं कहा है. वी डोंट केयर अल्फा और बीटा में से कौन सा वैल्यू बड़ा है. सिंपली दे मस्ट बी डिफरेंट पॉइंट्स. दो अलग अलग पॉइंट होंगे तो दिस इज द पोर्शन वेयर fx is more than 0. 50 different equations could be created in this scenario. ठीक है, टाइम देखो, समझो, लिखो इस चीज को. देर आर 7 वैल्यूज पॉसिबल फॉर अल्फा. ये फर्स्ट वाला सेट अल्फा के वैल्यूज हैं. दीज आर पॉसिबल वैल्यूज अल्फा. दीज आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा. और अल्फा और बीटा के पेयर्स बनाने हैं हमें. तो 7 into 8, 56 पेयर्स आर देयर. पेयर्स ऑफ अल्फा एंड बीटा. ये क्यों माइनस कर रहे हैं? ये वाले पेयर क्यों माइनस कर रहे हैं? अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे तो हमारा ये वाला ग्राफ बन जाएगा. वी डोंट वांट दैट. वी वांट द ग्राफ टू क्रॉस द एक्सिस. लिखो इसे, डन करो.
Moving on. In this, we need to find the value of x that meets this, that fulfills this inequality. हमें वो वैल्यू चाहिए x जिसमें inequality ट्रू हो. You can try and completely solve, आपकी मर्जी है, और you can also try options. Options replace करके भी अगर आप कुछ कर सकते हो तो give it a try. Inequalities हो, equations हो, कोई और चीज हो, the simplest values to replace are -1, 0 and 1. अगर आप रिप्लेसमेंट करना भी चाहते हो तो ये इजी वैल्यू होते हैं चेक करना, 0, +1 एंड -1. Comment answers if you have reached the answer. Comment. देखो, ऐसे इन चीजों को पकड़ना सीखो. ये जो राइट साइड के ऑप्शंस हैं, सी x कैन नेवर बी 0 इन दिस, क्योंकि 1 से आगे जा रहे हैं. दिस इज गोइंग फ्रॉम 1 टू द राइट साइड, 8 तक जा रहे हैं. इन दोनों में x इज इक्वल टू 0 आ सकता है. सो आई विल पुट 0 इन दिस. दिस इज द इक्वेशन. आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व एज वेल. आजकल टीटा वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, हाउ मेनी वैल्यूज वाले. सॉल्व करना हमेशा आना चाहिए. If I put x is equal to 0, the first value becomes 0, second value becomes 0, the third one is -2. आपको केवल ये बताना है, is -2 below 0? Is -2 below 0? Yes, ये below 0 है. तो x is equal to 0 मेरे आंसर का पार्ट है. These are gone. इनमें 0 है ही नहीं. 0 is part of my answer. So answer is either B or the answer is A. अब एक्सट्रीम लिमिट देखो, ये 8 तक जा रहा है एंड दिस इज स्टॉपिंग एट 1. 8. अब ये वाला जो 1 है वो इस रेंज में भी आएगा. देखो, डोंट पुट कॉमन वैल्यूज. कॉमन वैल्यू पुट करोगे तो वेरीफाई करने में इशू होगा. ये 8 ऑप्शन बी में है, 8 ऑप्शन ए में नहीं है. लेट मी पुट 8 हियर. ये क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज दिस? 8 का क्यूब रूट लिखा हुआ है एंड देन अ स्क्वायर. 2/3 पावर का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर 2/3? जो क्यूब रूट है उसका स्क्वायर करना है. एंड देन व्हाट इज दिस? मिडिल टर्म इज क्यूब रूट. ये मिडिल टर्म क्या है? व्हाट इज दिस मिडिल टर्म? क्यूब रूट -2. व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 8? 2. तो 2 का ये 2 का स्क्वायर, ये दिस इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस दिस इज होल 2 -2. ये कैंसिल. आप मुझे बताओ, इज 4 लेस देन 0? क्या 4 लेस देन 0 होता है? नो. सो माय आंसर इज ओनली ए. दिस वाज ऑप्शन रिप्लेसमेंट. हमने एक एक करके ऑप्शन रिप्लेस करके चेक किया. वी टेस्टेड दिस बाय रिप्लेसिंग आंसर ऑप्शंस. और कोई फास्टर तरीका है इसका? देखो, आप चेक करो. Observe, learn this. If you notice here, if you assume
x की पावर 1/3 इज इक्वल टू अ न्यू वेरिएबल, ऐसा, दिस इज इक्वल टू y। तो पहला टर्म क्या है, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब वेवी कर्व के हिसाब से रूट ओवर रूट पॉइंट इज 1, रूट पॉइंट इज -2 प्लस माइनस प्लस, ये इस पूरे का रूट पॉइंट है। तो हमारा रेंज यहां पर आएगा, हमें नेगेटिव पोर्शन चाहिए, यहां पर आएगा, दिस इज नेगेटिव पोर्शन। तो वैल्यू ऑफ y इज बिटवीन 1 एंड -2। y क्या था, क्यूब रूट ऑफ x, दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। टेक अ क्यूब ऑफ दिस, -8x1, ये आपका रेंज है। सो व्हाट आई एम हाईलाइटिंग नाउ इन द ब्लू, ये पूरा सॉल्यूशन है। अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं होते, इट वाज अ थीटा क्वेश्चन, उसमें पूछता हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर देयर, हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स आर देयर, तो आपका आंसर आता है इससे और इसके बीच में 10 वैल्यूज हैं। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड, कमेंट डन। क्लियर है, डन है, कमेंट। व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग, आराम से सॉल्यूशन देखो, आराम सीखो। एक बार सीख गए, खुद सॉल्व कर रहे हो, ट्राई टू मेंटेन स्पीड। कैट में बहुत स्पीड चाहिए। कंसिडर कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन, fx is equal to x plus 4, x plus 6, x plus 8 and so on x plus 98 तक जा रहे हैं। The number of integer values of x for which fx is less than 0 is, कितने ऐसे वैल्यूज होंगे, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर जहां पे fx नेगेटिव होगा। लास्ट क्लास में आपने ऐसे दो क्वेश्चंस बनाए, यू हैव सॉल्व टू क्वेश्चंस अर्लियर। अभी ट्राई करो, यहाँ पे टेक 2 मिनट्स, एक ऑप्शन ई भी लगा दो, none of these, solve it for me।
तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हाउ मेनी इंटरवल्स आर बीइंग फॉर्म्ड, इंटरवल्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं और कौन कौन से बन रहे हैं। ये 0 कब होगा, when x is -4, -6, -8, -10, कहाँ तक जाएगा, -98, -96, -94। अब थोड़ा सा ना आप ये देखो, आपको इंटरवल थोड़े गिनने पड़ेंगे। क्यों? अभी क्योंकि x की जो पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी, सामने प्लस साइन आएगा, तो इधर से प्लस होगा, माइनस, प्लस, माइनस। तो ऐसे इंटरवल्स कितने गिनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, fx लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0। ये लेस देन 0 केवल यहां पर बीच में होगा, एक ही वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू -5। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू -9। ऐसा चलेगा। अब इंटरवल क्यों गिनने हैं, तो मुझे जानना पड़ेगा ना बीच में कितने वैल्यूज हैं। देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 into 2, this is 2 into 3, this is 2 into 4, नेगेटिव है तो क्या हुआ, this is 2 into 5, this is 2 into 49। तो 2 के सेकेंड मल्टीपल से मुझे 49th मल्टीपल तक वैल्यूज कितने जानना है। तो इनका डिफरेंस 47 प्लस 1, देयर आर 48 वैल्यूज। लैंग्वेज सुनना, आप जब नंबर लाइन पे 1 2 3 4 4 ड्रॉ करते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा होता है। आपने जब 4 ड्रॉ किए तो नेगेटिव कितने बने, 2। और देखो, इफ आई ड्रॉ 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मुझे 48 पॉइंट्स है, 48 पॉइंट्स हैं नंबर लाइन पे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आपने जब 6 पॉइंट रखे तो नेगेटिव कितने बने, 3। आपने 4 पॉइंट्स रखे तो नेगेटिव कितने बने, 2। तो आप जब 48 पॉइंट्स रखोगे, 48 पॉइंट्स, तो नेगेटिव कितने बनेंगे, 24। दैट इज योर आंसर। ये एडवांस नहीं है, डोंट वरी, दिस इज नॉट अ एडवांस प्रॉब्लम। बहुत फंडामेंटल्स पे, इट्स अ वेरी वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। क्योंकि देखो, हर एक इंटरवल के बीच में कितनी वैल्यू है, हर एक इंटरवल के बीच में एक ही वैल्यू है। बिटवीन -6 एंड -4, बिटवीन एक ही वैल्यू आएगी ना, -5। हमें क्या चाहिए, ग्राफ ऐसा रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये पूछ रहे हैं नेगेटिव कब होगा, तो इनके बीच की वैल्यू पे होगा। तो बीच में वैल्यूज कितने वो गिनने हैं। तो ये ऊपर के एग्जाम्पल देखो, मैंने आपके लिए यहाँ ड्रॉ किए हैं। when there are 4 points, there are 2 negative points, when there are 6 points, there are 3 negative points, and so on so forth। तो अभी हमारे पास 48 पॉइंट्स हैं। हमें कैसे पता पड़ा 48 पॉइंट्स हैं, ये 2 into 2 से शुरू हुआ और ये 2 into 49 तक गया। फ्रॉम 2 to 49 there are 48 पॉइंट्स। अच्छे से ड्रॉ करो इसको, अच्छे से सॉल्यूशन लिखो। मूविंग ऑन, डन है ये, गुड। सॉल्यूशंस लिखते हो अच्छे से आप। Now I'm supposed to solve for x, x के लिए सॉल्व करना है। तो आई विल सजेस्ट यू, छोटा मोटा इनइक्वालिटी है, ऑप्शंस गिवन है आपको, ट्राई टू रिप्लेस देम।
ऑप्शंस को आप रिप्लेस करने का कोशिश करो. सो गो ऑन, गिव इट अ ट्राई. तो देखो अगेन कौन सा वैल्यू पुट करना चाहिए. देखो x इज इक्वल टू 0 इफ आई पुट हियर, तो ये रूट ओवर बन जाएगा -3 का, विच इज इमेजिनरी. इमेजिनरी नंबर्स कैन नॉट बी मोर देन और लेस देन, कैन नॉट बी. इमेजिनरी नंबर कंपेयर नहीं होते, तो ये बाहर हो गया. अब देखो ये वाली वैल्यू 3 टच नहीं कर सकती, और इस वाले ऑप्शन के अंदर में 3 है. मैंने 3 रख के देखा यहाँ पे. इफ आई पुट 3 हियर, ये बन जाएगा रूट ओवर 12 -3 which is 9, which is 9. रूट ओवर 9 इज इक्वल टू 3. ये मैंने लेफ्ट साइड की वैल्यू निकाली है. इज इट मोर देन x? मैंने क्या पुट किया, x इज इक्वल टू 3. इज इट मोर देन 3? ये तो बराबर है, तो ये नहीं हो सकता, ये बाहर हो गया. अब एक ऑप्शन बच गया x इज मोर देन 1, दूसरा ऑप्शन बच गया x इज बिटवीन 1 एंड 3. मोर देन 1 तो यहां पर भी है, लेकिन अब ऐसा वैल्यू पुट करो जो एक में हो दूसरे में ना हो. ये 1 से, ऑप्शन ए बोल रहा है 1 से ऊपर जो वैल्यू चाहिए ले लो. ऑप्शन सी कह रहा है वैल्यू शुड बी बिटवीन 1 एंड 3. ये यहां होनी चाहिए वैल्यू. तो मैं डेलिबरेटली क्या कर रहा हूं, यहां से एक नंबर पिक कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 5. 5 लो, 4 लो, कोई भी नंबर लो. इफ आई पुट 5 इनसाइड, तो ये क्या बन जाएगा, रूट ओवर 20 -3 विच इज रूट ओवर 17. और x का वैल्यू क्या है, 5 लिया मैंने. आप मुझे बताओ अगर अंदर 25 से ऊपर होगा तब तो ज्यादा होगा. अगर रूट ओवर के अंदर में 25 से ऊपर होगा देन यू कैन से 5 से ज्यादा आउटकम है, बट उससे कम है, तो x इज इक्वल टू 5 नहीं बैठा, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया. द ओनली आंसर वैलिड इज सी. ये ऑप्शन रिप्लेसमेंट का जुगाड़ है, ऑप्शन रिप्लेसमेंट का टेक्निक है. अच्छे से सीखो, लर्न दिस वेल, लर्न दिस प्रॉपर्ली. इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो स्क्वायर करके सॉल्व करना पड़ेगा. स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर उसके थ्रू यू कैन फाइंड रूट्स एंड सॉल्व. अभी हमने ऑप्शन रिप्लेस करके इसको सॉल्व किया है.
You want to repeat this particular solution? यही सॉल्यूशन रिपीट करूं या पूरा एक्सपैंड करके स्क्वायर करके सॉल्व करूं फॉर यू इज, लेट मी नो। यही रिपीट करना है या पूरा एक्सपैंड करके सॉल्व करना है? सबसे पहले तो व्हाट इज द इजीएस्ट वैल्यू टू पुट, x इज इक्वल टू 0 लेके मैंने पुट कर दिया, तो ये वैल्यू होगी √/-3, ये वैल्यू होगी 0। दिस इज अ इमेजिनरी नंबर, यू कैन नॉट से इट इज मोर और लेस। इमेजिनरी नंबर कंपेयर होता ही नहीं है, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो देखो इसमें क्या है, बोल रहा है 3 के नीचे जाओ, तो 3 के नीचे 0 आता है, बट 0 फिट नहीं हुआ, ऑप्शन इज गॉन। अब ये ऑप्शन में तीनों में क्या कॉमन है, 1 से ऊपर चाहिए वैल्यू, ये भी 1 से ऊपर है, 1 से ऊपर है, 1 से भी ये भी ऊपर है। अब ऐसा वैल्यू पुट करो जो एक में हो, लाइक x इज इक्वल टू 3, इसके अंडर में आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 के बराबर नहीं हो सकता ना, x इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया मैंने इसमें, ये बन जाएगा 4 इंटू 3 12 माइनस 3 रूट ओवर विच इज वॉट, विच इज √/9 विच इज वॉट 3। अब देखो ये x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू 3, ये √/, का वैल्यू है, ये √/, का वैल्यू है। इज इट मोर देन x? क्या ये वैल्यू x से बड़ी है? इट इज नॉट, ये x से बड़ी वैल्यू नहीं है, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। ऑप्शन सी क्या बोलता है आपसे कि 1 और 3 के बीच के नंबर होने चाहिए। ऑप्शन 1 क्या बोलता है आपसे, 1 से ऊपर कुछ भी चलेगा, तो ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जो दूसरे की रेंज में ना हो। तो x इज इक्वल टू 4 ले लो, 5 ले लो, मर्जी है आपकी, 4 रख के देखो, इसमें 4 रख के देखे मैंने, तो यहां पर 4 रखेंगे, हियर आई पुट 4, सो 4 इंटू 4 16 माइनस 3 विच इज 13 √/13। x का वैल्यू कितना है 4, इज √/13 मोर देन 4? नो, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया आपका, द ओनली आंसर इज 3। मैंने इस रेंज के बाहर का नंबर ले लिया और वो फेल हो गया। इज इट क्लियर नाउ? Put such a value which is not part of the other solution or other equation. चलो, मूविंग ऑन फ्रॉम दिस। हाँ, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैट। दिस इज कॉल्ड AMGM। ये ज्योमेट्री में भी लगेगा, अभी प्रोग्रेशंस का एक टॉपिक आएगा उसमें भी लगेगा, एल्जेब्रा मैक्सिमम में भी लगेगा, नंबर बेस्ड मैक्सिमम में भी लगेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड AMGM। सबसे पहले तो अरिथमेटिक मीन, AM इज अरिथमेटिक मीन, GM इज ज्योमेट्रिक मीन। ये होता क्या है, अगर मैं आपको दो नंबर दे दूं AB, तो अरिथमेटिक मीन जो होता है इट इज A + B/2, ये अरिथमेटिक मीन है। इफ आई गिव यू 3 नंबर्स ABC, तो अरिथमेटिक मीन इज A + B + C/3। इफ आई गिव यू 4 numbers, arithmetic mean is arithmetic mean means average. Arithmetic mean basically average. 4 नंबर है, add 4 divide by 4। 5 नंबर है, ऑल ऐड को सबको ऐड कर दो, अपॉन 5 कर दो। अब ज्योमेट्रिक मीन थोड़ा सा अलग होता है, लर्न दिस पार्ट। अगर दो नंबर है तो मैं बता रहा हूं ज्योमेट्रिक मीन कैसे लेते हैं। इट इज रिटर्न एज स्क्वायर रूट, इट इज रिटर्न एज स्क्वायर रूट ऑफ A into B। अभी 3 नंबर है तो कैसे लिखेंगे, ये ज्योमेट्रिक मीन का कॉलम है,
it will be written as cube root of a into b into c. 4 नंबर हैं, it will be written as fourth root over of a b c d. 5 नंबर है तो फिफ्थ रूट ओवर. अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, डिवाइजर में नंबर आता है, नीचे डिवाइड करने में डिनोमिनेटर में आता है, और ज्योमेट्रिक मीन में पावर में आता है, सर्ड बन जाता है आपका कैलकुलेशन. अब रूल ये है, जो अरिथमेटिक मीन होता है वो या तो ज्यादा होगा या तो बराबर होगा. अरिथमेटिक मीन कभी छोटा नहीं हो सकता ज्योमेट्रिक मीन से. राइट इट डाउन, हाईलाइट दिस, कमेंट डाउन. अभी हम थ्योरी कर रहे हैं, अभी हमारा नया कंटेंट स्टार्ट हो गया एएमजीएम का. Comment done. नाउ मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से सिखाता हूं ऐसा क्यों होता है. तो मैं आपको 2-3 रूल बताऊंगा, उन पे भी ध्यान देना. से कह दिया देयर आर टू नंबर्स a and b, लेट अस से उनका एडिशन इज 20. आई एम b, ध्यान से देखो आप. इफ दिस इज 1 plus 19, this is 19. If this is 2 plus 18, this is 36. देखो यहां से लेके यहां पे कितना अचानक से बढ़ गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज है. If I take 3 plus 17, this becomes 51, और बढ़ गया. If I take 4 plus 16, this becomes 64. आपको दिख रहा है जैसे जैसे A और B नजदीक आ रहे हैं. पहले क्या था, मैक्सिमम गैप था बिटवीन A एंड B. अब गैप कम हो गया 1 से, यहां पर गैप और कम हो गया. A और B नजदीक आ रहे हैं, A एंड B आर गेटिंग क्लोजर. तो इनका प्रोडक्ट क्या होता जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है. इफ आई टेक 5 plus 15, ये 75 हो जाएगा. मैं एक बार कंप्लीट कर देता हूं आपके लिए. इफ आई टेक 6 plus 14, द प्रोडक्ट इज 84. देखो बढ़ ही रहा है अभी भी. इफ आई टेक 7 plus 13, दिस इज 91, बढ़ ही रहा है. इफ आई टेक 8 plus 12, दिस इज 96. इफ आई टेक 9 plus 11, दिस इज 99. जब मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान से देखो, 10 plus 10, तो ये 100 हो जाता है. अब इसके बाद तो फिर से वही आएगा ना, 11 10 9 11. तो अब देखो ये क्या है, कैन आई से जो A इंटू बी है ये मैक्सिमम हो गया. ये कब मैक्सिमम हो गया, जब आपने A इज इक्वल टू बी कर दिया. आपने A इज इक्वल टू बी किया यहां पे, तब तो जाके मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम हुआ ना. नंबर यहां पर कुछ भी हो, 20 की जगह 10 हो, 15 हो, एक ही रिक्वायरमेंट पे है, ध्यान देना. ये तभी काम करेगा इफ एंड ओनली इफ, ये तरीका लिखने का, इफ एंड ओनली इफ द एडिशन इज गिवन कांस्टेंट. तो कभी भी अगर एडिशन कांस्टेंट दिया है तो मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम होगा अगर आप बराबर कर दोगे. जैसे मुझे अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 16 दे दिया
और मुझसे कहता है मैक्सिमम करके दो a इंटू बी को, तो मैं 8 प्लस 8 लूंगा, ये 64 है, ये मैक्सिमम है। अगर ये 16 दिया हुआ ही नहीं होगा, ये दिस इज नॉट गिवन टू यू, तो मैक्सिमा किस चीज का करोगे? सो लैंग्वेज सुनना, सेंटेंस क्या है? व्हेन द एडिशन इज गिवन द प्रोडक्ट बिकम मैक्सिमम व्हेन यू मेक a इज इक्वल टू b। वर्डिंग पे ध्यान दो। व्हेन द एडिशन इज गिवन कांस्टेंट, when the addition is given constant, the product becomes maximum when you make a is equal to b। अब मैं बताता हूं, मैं इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा था। देखो, व्हाट इज देयर, अरिथमेटिक मीन is more than or equal to geometric mean। what is geometric mean? square root of ab। दो नंबर है, तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ab। मैंने केवल इसको, अगर ये क्वेश्चन में दिया होता तो मैंने यहां पुट कर दिया 20/2 is more than equal to root over ab। this is 10। स्क्वायर ले लिया, 100 is more than equal to ab। तो देखो नंबर लाइन पे कहीं पे 100 लिखा होगा और 100 बड़ा है। अगर ए बी होता तो ए बी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है, तो 100 क्या है, उसका मैक्सिमम लिमिट है, उसके आगे नहीं जा सकता ए बी। कहना इसे यहां पर ए बी का मैक्सिमम मेरे को ऐसे ही मिल गया, मेरे को ए इज इक्वल टू बी करना पड़ा क्या? नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा फॉर्मूला बेस्ड, ये इंटरनली ए और बी को बराबर कर देगा, आपको टेंशन लेनी है। जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाता a प्लस बी इज इक्वल टू 15, मुझे a इंटू बी का मैक्सिमम चाहिए, तो मैं क्या कहता, इसका एवरेज निकाल लो, 15/2 इज मोर देन इक्वल टू रूट ओवर ए बी। अब कर दो इसका स्क्वायर, लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 225/4 इज मोर देन इक्वल टू ए बी। खत्म। तो 225/4 इज द मैक्सिमम। तो मैंने आपके सामने तीन तीन एग्जाम्पल बनाए हैं। पहले आई वॉज टेलिंग यू वैल्यू बराबर करके, ये जो मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दो। इतने सारे वैल्यू थोड़ी लिखने एग्जाम में, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो, एज लॉन्ग एज आई ब्रिंग देम क्लोज, जैसे जैसे ये नजदीक आ रहे हैं ए और बी, ये नजदीक आ रहे हैं, तो यहां प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। आपको केवल रिजल्ट पे ध्यान देना है। व्हेन द नंबर्स आर इक्वल द मल्टीप्लिकेशन बिकम्स मैक्सिमम। इसके लिए एडिशन होना चाहिए, एडिशन होगा तब तो बराबर करोगे ना। तो आप ना ये वाली अप्रोच पे ध्यान दो और एक दिमाग में सेंटेंस रखो, वैल्यू को बराबर करना पड़ता है। वी नीड टू मेक द वैल्यूज इक्वल।
ये समझा आपको? ये क्लियर है अभी? हाँ बेटा, वही क्वेश्चन है कि a इंटू बी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर a प्लस बी आपको गिवन है तो। इसके छोटे छोटे और बहुत से वेरिएशंस हैं। अभी a प्लस बी इज इक्वल टू 20 दिया है, कल को 2a प्लस 3 भी दे देगा 20, तो छोटे छोटे वेरिएशन बहुत है। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है बेटा, अरिथमेटिक। ये देखो, ये वाला कॉपी करो पहले तो आप पिछले वाले स्लाइड से, ये कॉपी करो, कॉपी दिस। When two numbers are given, arithmetic mean is a plus b by 2. Three numbers are given, arithmetic mean is a plus b plus c by 3. Four numbers are given, a plus b plus c plus d by 4. Arithmetic mean. Arithmetic mean is more than or equal to. Arithmetic mean is more than or equal to geometric mean. Geometric mean क्या है? दो नंबरों के लिए स्क्वायर रूट ए बी, इसको बोलते बेटा क्यूब रूट। दिस इज क्यूब रूट ऑफ फोर्थ ऑफ ए बी सी डी। ये जो मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं व्हाइट कलर से, यहाँ पे जो मैं टिक लगा रहा हूं, इनमें मैंने ए और बी का वैल्यू नहीं ढूंढा ना, मुझे ए और बी नहीं चाहिए। ये जो पिछला मेथड है, मेरे को मैन्युअली मेरे को ए और बी को बराबर करना पड़ रहा था। यहां पर ए और बी अपने आप से बराबर हो जाएगा, मुझे ए और बी वैल्यू निकालना ही नहीं है, सीधा फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। हाँ, अभी इसका रिवर्स क्या होता है, मान लो आपको a इंटू बी का वैल्यू दे दिया, लेट अस से 36। अब मैं पहले आपको ना पैटर्न दिखाना चाह रहा हूं कि आप पैटर्न समझो क्या काम करता है। इफ दिस इज 1 इंटू 36 मान लो, तो ये क्या बन जाएगा, 37 बन जाएगा a प्लस बी। इफ दिस इज 2 इंटू 18, ये 20 बन जाएगा। इफ दिस इज 3 इंटू 12, तो ये क्या बन जाएगा, एडिशन का वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, अज्यूम कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू एंड आई एम फाइंडिंग एडिशन का वैल्यू। इफ दिस इज 4 इंटू 9, आपको दिख रहा है धीरे धीरे वैल्यू कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये दोनों नंबर नजदीक आ रहे हैं, इनमें 5 का गैप है, इनमें 9 का गैप है, इनमें 16 का गैप है। गैप कम हो रहा है ए और बी में, एडिशन छोटा होता जा रहा है। तो कहना इसे, अगर ये 6 इंटू 6 होता, 36 को तोड़ने का तरीका, तो ये 12 बन जाता। तो आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं मैं, जो एडिशन है ये मिनिमम हो गया, ये कम से कम हो गया आपने जब ए बी को बराबर कर दिया। तो लैंग्वेज पे ध्यान देना बेटा, जो एडिशन का वैल्यू है ये मिनिमम हो जाता है, मिनिमम व्हेन यू मेक a इज इक्वल टू b। क्या होना चाहिए, क्या दिया था आपको, क्या देके स्टार्ट किया हमने, प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लीकेशन शुड बी गिवन। अगर 20 है, 40 है, 50 है, कुछ भी, अगर मल्टीप्लीकेशन गिवन है तो हम एडिशन को कम कर सकते हैं। अब देखो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको, इसी एग्जाम्पल पे कर रहा हूं। आपको पहले दे दिया a इंटू बी 36 दे दिया, और आपसे कह दिया a प्लस बी को क्या करके बताओ, मिनिमम करके बताओ, लोवेस्ट करके बताओ। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन का, a प्लस बी अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, रूट ओवर ए बी। ये होता है, ये मैंने आपको बोला ऐसा होता है, इट इज गिवन दैट ऐसा होता है। अब देखो आपको मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू पता है, इसमें पुट कर दो, मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसमें पुट कर दो, a प्लस बी अपॉन 2 इज मोर देन और इक्वल टू अंडर रूट 36। तो a प्लस बी अपॉन 2 इज मोर देन और इक्वल टू 6।
a प्लस बी इज, नंबर लाइन पे कहीं पे 12 होगा और उसके आगे है a प्लस बी, उससे ऊपर है a प्लस बी, उसके राइट साइड पे, तो ये लोएस्ट पॉइंट हुआ ना, उसके नीचे नहीं जा सकता a प्लस बी इज मोर देन, तो आपका a प्लस बी क्या हो गया, मिनिमम हो गया। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आगे आएंगे जिसमें आप एक एक करके वैल्यू नहीं निकाल सकते, सीधा पूरी इक्वेशन की वैल्यू एक साथ आ जाएगी। तो फॉर्मूला मेथड भी सीखो, ये वाला मेथड भी सीखो, लर्न दिस एज वेल। अरिथमेटिक इज मोर देन ज्योमेट्रिक मीन। कंफर्म करो ये समझा आपको। तो मल्टीप्लिकेशन दिया होगा तो आई कैन फाइंड एडिशंस, एडिशन गिवन होगा तो आई कैन फाइंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये एएमजीएम कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा सा मैं इसका लेवल चेंज करूं, थोड़ा ध्यान देना आप। अभी आपको क्या दिया रहेगा, लेट अस से 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, और आपसे क्या कहा जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसका मैक्सिमम निकालो। पहले अभी चीज लिख लो, ये गिवन है, ये पूछेगा। बस एएमजीएम के लिए एक कंडीशन हमेशा याद रखना, इट इज ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। एएमजीएम इज ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। इसका एक एक्सेप्शन मैं आपको दिखाऊंगा, बट एएमजीएम जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए होते हैं। अब जो क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में दिखते हैं, कैट में, नॉन कैट में, तो इनको कैसे हम यूज करते हैं, हाउ डू वी यूज दीज मेथड्स, थोड़ा ध्यान से देखना अभी आप। हमेशा हमेशा किस पे ध्यान देना है, पहले मल्टीप्लिकेशन पे। स्क्वायर का मीनिंग क्या है, x इंटू वाई। लैंग्वेज पे ध्यान देना बेटा, अभी ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, जो मैंने आपको आगे से कहा है ना, मैं उसी को एक लेवल ऊपर लेके जा रहा हूं। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे x के 2 वैल्यू चाहिए और y का 1 वैल्यू चाहिए। हमेशा कहां से देखना है, हमेशा प्रोडक्ट से देखना है। प्रोडक्ट हमेशा बताता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3x, मेरे को क्या चाहिए, 2 टर्म्स। देखो मैंने 3x के 2 हिस्से कर दिए, 3x के मैंने 2 हिस्से कर दिए। मैं फिर से एक बार लिखता हूं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 एंड एक्स स्क्वायर इंटू वाई का मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एक्स वाई आर पॉजिटिव, ऐसा बोलेगा। मैंने क्या कहा आपको, हमेशा प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि स्क्वायर है तो मेरे पास x 2 बार आएगा और y 1 बार आएगा। तो क्योंकि 2 बार आएगा तो ये जो पावर है ना, इससे डिवाइड करते हैं इसको। तो देखो 3x/2 प्लस 3x/2, y एक ही चाहिए मेरे को, एक ही y चाहिए, तो 2y/1। अब समझो ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है, तो आपके कितने टर्म्स हो गए, आपके पास 3 टर्म्स हो गए। दिस इज मोर देन और इक्वल टू, 3 टर्म में क्या बनेगा, क्यूब रूट बनेगा। अब जो टर्म्स इधर लिखे हैं आपने, ये टर्म्स ये दिखने चाहिए यहाँ पे, 3/2x, 3/2x, 2y। थोड़ा रीअरेंज करो,
ये 1/2 और ये 2 कट जाएगा, ये 3 इंटू 3 हो जाएगा 9/2, x इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा x स्क्वायर y, ये बनेगा क्यूब रूट। अब लेफ्ट साइड में आपने क्या लिखा है एक बार बताओ, अगर आपके पास नंबर होता a/2 प्लस a/2, तो है तो a ही ना, वो बाद में फिर से इट इज इक्वल टू a, ये जो आपने बाई टू कर दिया ये फिर से 2 बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या है आपके पास, ध्यान दो, आपके पास लेफ्ट साइड में 3x प्लस 2y अपॉन 3 मोर देन और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 9/2 एक्स स्क्वायर वाई। तो ये किसके बराबर है, 21 के, यहाँ 21 रख दो, 21/3 मोर देन और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3/2 एक्स स्क्वायर वाई, ये बन गया 7। अब क्यूब रूट कैसे कैंसिल करते हैं, क्यूब कर दो, 7 का क्यूब कितना होता है 343 इज मोर देन और इक्वल टू 9/2 एक्स स्क्वायर वाई, इसको इधर भेज दो तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 343/9 मोर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, ये आपका मैक्सिमा आ गया। ये कैट लेवल क्वेश्चन है बेटा, दीज आर कैट लेवल क्वेश्चंस। आराम से आप लिखो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। I'll re-explain the whole process. एक बार अब से कंप्लीट कर दो पहले। ये एक कंडीशन पे ध्यान देना, ऑलवेज हु विल डिसाइड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा कहां से मिलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स प्रोडक्ट से मिलेंगे, ये प्रोडक्ट बोलते हैं बेटा, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। इसमें x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और y 1 बार, तो x की जो भी यहां पर कुछ भी लिखा हो, यहां पर कुछ भी लिखा हो, 5x लिखा हो, 4x लिखा हो, 10x लिखा हो, उसके 2 हिस्से कर देने आपको, y की पावर 1 है तो 2y को कुछ नहीं करना, अपॉन 1 करके छोड़ देना है। तो आपका पहला टर्म a हो गया, दूसरा टर्म b हो गया, तीसरा टर्म c हो गया, क्योंकि 3 टर्म्स हैं, तो a प्लस b प्लस c अपॉन 3 इज मोर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ऑल दिस। I stay near वो गणपति पंडाल, तो उसका म्यूजिक बज रहा है अभी। आर यू एबल टू हियर मी? डिस्टर्बेंस ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं है इसमें? चलो, मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, ये रिपीट करना आपके लिए, बताओ मुझे एक बार। चलो, मूविंग ऑन, गुड। चलो, सो ट्राई दिस। अभी एएमजीएम क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी, पहले एक ट्राई करो, थोड़े इजी क्वेश्चंस भी आप ट्राई करो पहले। इनफ क्वेश्चंस आर इन दिस क्लास शीट, टेक 2 minutes, सॉल्व।
कमेंट योर आंसर। फिर से अब थोड़ा सोचो, ऐसा कोई वैल्यू है क्या जो रिप्लेस करके मेरे काम आए? इसको प्रॉपरली सॉल्व भी कर सकते, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। पूछ रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x विल दिस बी लेस देन दिस +1। देखो इस रेंज में 0 आता है और कहीं नहीं आता है, देयर इज नोवेयर 0। 0 इसमें भी नहीं है, हाँ यहाँ पर 0 है, देखो देयर इज 0 हियर। इसमें और इसमें 0 नहीं है, मैं x इज इक्वल टू 0 रख देता हूं। दिस इज 0, इसमें 0 पर पुट कर दिया, दिस इज 0, दिस इज 1। तो क्या क्या 1 बड़ा है 0 से? यस। x इज इक्वल टू 0 फिट्स माई रिक्वायरमेंट, x इज इक्वल टू 0 मेरे को चलेगा, तो ये ऑप्शन कट गए, ये ऑप्शन बाहर हो गए। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये ऑप्शन बोल रहा है -1 से 1 चलेगा और फिर 1 से आगे चले जाओ, इनफाइनाइट तक चले जाओ। ये ऑप्शन क्या बोल रहा है? 1 से लेके -1 के बीच में रुके रहो, बस यही चलेगा। तो मैंने बाहर से एक वैल्यू ले लिया, लेट अस से 10। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने बाहर से वैल्यू ले लिया 10। इस वाले रेंज में तो 10 नहीं आ सकता क्योंकि बोल रहा है -1 to 1, तो 10 रख दिया मैंने, इसमें रख दिया 10, तो 100, इसमें रख दिया 10 प्लस 10, यहां रख दिया 10, 1000 प्लस 1। इज 1001 मोर देन 110? यस। तो मेरे हिसाब से 10 इज ऑल्सो अ वेरी गुड चॉइस। 10 है क्या इसमें? नहीं, दिस इज माई आंसर। तो ऐसे यू कैन पुट ऑप्शंस एंड चेक। ये तभी काम करेगा जब क्लियर कट ऑप्शंस गिवन हो। अब लेट अस से सर अगर ऑप्शंस नहीं होते या सॉल्व करना पड़े तो कैसे करें? तो इन ऑल सच क्वेश्चंस यू हैव लर्न्ड वेवी कर्व मेथड कैसे यूज होता है। अगर सिंगल वेरिएबल है ना बेटा, तो देर इज अ 90% चांस वेवी कर्व से बन जाएगा, ये बोला है इन्होंने। जहां ज्यादा पावर है उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये 0 हो गया, x³ -x² -x + 1। देखो क्या कॉमन है इसमें? x² कॉमन है, x -1 बन गया। इसमें देखो मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, x -1 बन गया। अब मैंने पूरे में से क्या कॉमन निकाल लिया? x -1 कॉमन निकाल लिया। अब क्या बच गया? x² -1 बच गया। इसे कैसे लिखते हैं? दिस इज रिटर्न एज x -1 इंटू x -1 इंटू x + 1। तो ये फैक्टराइज हो क्या बन गया? 0 इज लेस देन x -1² x + 1। अब ये 0 कब होगा? -1 पे। ये 0 कब होगा? +1 पे। अब आपको याद है इवन ऑड पावर मैटर करता है, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में किया आपने, इवन है कि ऑड है। ये प्लस होगा, देखो ये क्या है? ये क्या है? इवन पावर। तो इवन पावर में ये प्लस का प्लस होगा, इट डज नॉट चेंज। ऑड पावर में ये माइनस हो जाएगा। तो डू यू सी ये किधर किधर पॉजिटिव है? ये किधर किधर पॉजिटिव है? इसके आगे सब जगह पॉजिटिव है। देखो -1 to 1 एंड 1 to infinity। आंसर ऑप्शन सी। ये जो मैं अभी रेड में हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज प्रॉपर सॉल्यूशन। ये पूरे ढंग से हमने इसको सॉल्व किया है। और जो इससे पहले था, इट वाज ऑप्शन बेस्ड मेथड, ऑप्शन बेस्ड अप्रोच, जुगाड़ वाला। ये समझा आपको कंफर्म?
बोथ अप्रोच क्लियर है अपने को? ऑप्शन बेस्ड इन दिस, अभी तो बंद हो गया बेटा। हाँ, ट्राई दिस प्रॉब्लम। ये भी पास्ट कैट है, दिस इज पास्ट कैट। अभी इसके भी 3-3, 4-4 मेथड आ गए हैं मार्केट में। गिव इट अ ट्राई। ऑब्जर्वेशन वाला एक मेथड काफी अच्छा है, there's a very good observation based method. फॉर्मूला बेस्ड मेथड भी एक काफी बढ़िया है, there's a very good formula based method as well. दोनों मेथड देखते हैं। देखो ये वाला अप्रोच एक बार आप देखो, ये फॉर्मूला आप एक बार सीखो। whenever let us say x and y have a odd power, जैसे x का पावर 5 माइनस y का पावर 5 है, तो पहला टर्म हमेशा माइनस के फॉर्म में होगा, x माइनस y के फॉर्म में होगा। अब अंदर जो रहेगा, द पावर ऑफ x विल डिक्रीज एंड पावर ऑफ y विल इंक्रीज। देखो अंदर क्या है, सारा का सारा पॉजिटिव है, ध्यान दो इस बात पे, लर्न दिस, इस बात पर थोड़ा ध्यान दो आप। अगर ये केवल ऑड पावर का सिखा रहा हूं मैं, अगर यहां पर पावर 7 होता, x और y का पावर 7 होता विथ माइनस, तो यहां क्या होता, x माइनस वाई, देन ये होता x का पावर 6, फिर एक एक करके पावर विल डिक्रीज फॉर x, एक एक करके पावर विल इंक्रीज फॉर y। अब सर इसका यहां क्या यूज सकता है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस हियर? देखो ऊपर आपके पास क्या है, 65 पावर है, पावर इज ऑड, देखो पावर इज ऑड, और बीच में क्या साइन है, बीच में माइनस का साइन है। डिनोमिनेटर की हम बात करेंगे, डोंट वरी। देखो आप, तो ये जो आर का वैल्यू है, ये एक्स है और ये वाई है, तो 30 माइनस 29, पावर 5 हो चाहे पावर 7 हो, व्हाट इज द फर्स्ट ब्रैकेट, इट इज x माइनस वाई। ये यूनिवर्सल एक्सपेंशन है, ऐसा कोई मैं आपको मैजिक नहीं सिखा रहा, दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। अब देखो अंदर क्या होगा, ये शुरू होगा 30 की पावर 64 से, फिर देखो ऐसे एक एक करके पावर कम होगी, लेकिन टर्म तो सब प्लस है ना, भले पावर कम हो रही हो, सारे टर्म प्लस है। और आखिरी में देखो, ये जो y का या x का पावर 6 है, तो y का भी पावर 6 है आखिरी में। यहां पे भी आप ध्यान दो, x का पावर 4 है, तो y का भी पावर आखिरी में 4 ही है, ये देखो। तो सिमिलरली 29 का पावर भी क्या आएगा, 64 आएगा। आप अभी फिलहाल न्यूमरेटर पे ही ध्यान दो, तो ये सामने वाला टर्म 1 बन गया, ये 30 की पावर 64 प्लस 29 की पावर 64, और बहुत सारे नंबर्स हैं, और बहुत सारे नंबर्स होंगे, और 50-60 नंबर्स होंगे। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड किससे करना है इसको, 30 की पावर 64 माइनस 29 की पावर 64। अब इन दोनों को मैं ए और बी बुलाता हूं,
आपको न्यूमरेटर में a प्लस बी के अलावा बहुत सारे टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में a माइनस बी है। क्या ना इसे ऊपर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी नीचे से, ऊपर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी नीचे से, तो ये हमेशा मोर देन 1 होगा। तो जो वैल्यू ऑफ r है वो हमेशा मोर देन 1 होगा। ये क्या सीखा आपने? पूरा सॉल्यूशन सीखा। ऐसे क्वेश्चंस में 9 आउट ऑफ 10 केसेस में 9 आउट ऑफ 10 केसेस में जो r की वैल्यू होगी वो ऐसी होगी a की पावर ऑड माइनस b की पावर ऑड और नीचे उससे एक पावर कम होगी। बीच में प्लस हो चाहे माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में प्लस हो चाहे माइनस फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा बड़ा होता है। किससे? ये a माइनस बी से बड़ा होता है। यहाँ a 30 है, b 29 है, a माइनस बी 1 है, तो r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो 9 आउट ऑफ 10 केसेस में ये पैटर्न काम करता है। हाईलाइट दिस, ये जो r का वैल्यू है इट इज मोर देन a माइनस बी। डिनोमिनेटर में क्या होगा? एक पावर कम होगी। न्यूमरेटर में क्या होगा? न्यूमरेटर में पावर और रहेगी। जो मैंने राइट साइड कॉर्नर में लिखा है ये प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीका है। नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, ये पूरा आप कॉपी कर लो। देयर इज अ डेरिवेशन, लेफ्ट साइड मैंने आपको डेरिवेशन दिया और राइट साइड आपको ट्रिक दिया, मैंने शॉर्टकट दिया है। न्यूमरेटर में हमेशा a माइनस बी होगा, वॉट एवर इज द पावर ऑड रहेगा ऊपर। तो r इज ऑलवेज मोर देन a माइनस बी, इसको दिमाग बिठा लो। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन कैट एंड अदर मॉक्स, अदर एग्जाम्स। आपको मॉक में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। Comment done for this? Yes, we'll solve one or two more questions before we end the session. चलो, give it a try. कितने इंटीग्रल वैल्यूज होंगे k के? For how many integral values of k would the quadratic equation have real roots? देखो, रियल रूट्स का क्या प्राइमरी कंडीशन है? डेल्टा मस्ट बी मोर देन 0। रियल रूट बराबर भी हो सकते हैं
तो इक्वल टू भी ले लो. Real roots can be more than or equal to 0. डेल्टा में क्या होगा? सेंट्रल टर्म का स्क्वायर, k माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी. a क्या है? 3k इंटू k माइनस 1. ये हमें मोर देन इक्वल टू 0 चाहिए. अब ना स्क्वायर स्क्वायर करने के पहले देखो कॉमन क्या है. टेक आउट दिस एंड टेक आउट दिस कॉमन. k माइनस 1 स्क्वायर में एक k माइनस 1 कॉमन ले लो. टेक 1k माइनस 1 कॉमन. तो इसमें से बच जाएगा k माइनस 1 और यहां से बच जाएगा 12k. k माइनस 1, थोड़ा अंदर की वैल्यू पे ध्यान देना. ये k माइनस 12 माइनस 11k माइनस 1. मैंने